کہ اکھلیش یادو کے پیچھے RSS کا ریموٹ کنٹرول کام کر رہا ہے. محمود پراچا صاحب کو وہاں اتارا ہے. رامپور کے عوام کے بھارتیہ جنتا پارٹی انشاءاللہ کسی قیمت پر نہیں آنے دینا ہے. انڈی گٹھ بندھن کا جہاں تک تعلق ہے تو انڈی گٹھ بندھن نے جہاں قاعدے کے امیدوار اتارے ہیں وہاں ان کا سمرتھن ہے. جہاں انہوں نے بے ایمانی کی ہے، جیسے اکھلیش یادو مسلسل بے ایمانی کر رہے ہیں، اور اکھلیش یادو میں نے ساماجک نیائے منچ بنایا ہے. بریلی کے دو بڑے نیتا، ان لوگوں کی ملی جلی سازش کا نتیجہ 2010 کا دنگا تھا. کہ آج میں یہ عہد کرتا ہوں کہ جب تک 2010 کے اصل دنگائی سامنے نہیں آئیں گے تب تک میں تم تمام حضرات کا تہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے ان تمام چیزوں کے لیے دعائیں کی ہیں اور اس تکلیف کو محسوس کیا ہے. میں الفاظ میں ان کا شکریہ ادا نہیں کیا جا سکتا، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا وہ سراسر الزام تھا، بہتان تھا. میں نہ 2010 میں نے کوئی جرم کیا تھا اور نہ ابھی میں نے کوئی جرم کیا ہے. میری غلطی اتنی کہی جا سکتی ہے کہ 2010 کا جو دنگا ہوا اس دنگے کے بعد مجھ پر الزام لگایا گیا، پھر مجھ سے الزام واپس لیا گیا، اور الزام واپس ہو جانے کے بعد میں خاموش ہو گیا. یہ میری غلطی ہے. میں نے یہ سوال بار بار اٹھایا ہے کہ اگر میں دنگائی نہیں ہوں، اگر مجھ سے الزام واپس لیا گیا ہے تو دنگا تو ہوا ہے، اگر میں نے نہیں کیا تو کسی نے تو کیا ہے. ان کے خلاف میں نے آواز نہیں اٹھائی، ان کے خلاف میں نے احتجاج نہیں کیا، ان لوگوں کو برسر عام کرنے کی کوشش نہیں کی. اتنی غلطی میں اپنی مانتا ہوں. اگر میں اس وقت اس کوشش میں لگتا، اور مجھے لگنا چاہیے تھا کیونکہ میرے شہر کا ماحول بگاڑا گیا. ہم تو الحمدللہ امن و آشتی والے لوگ ہیں. ہمارا بزرگوں کا طریقہ یہ رہا ہے، غدر بھی دیکھے ہیں ہمارے اس سوداگران نے، بٹوارے کا وقت بھی دیکھا ہے، اور ہمارے خاندان نے ہمیشہ اتحاد کا پیغام دیا، محبت کا پیغام دیا. ہم کبھی فسادات میں نہیں رہے. یہ فسادات کا الزام جھوٹا ہے، بہتان ہے. تو میں اپنی اتنی غلطی مانتا ہوں کہ میرے شہر کے امن کو برباد کیا گیا، اور میں نے ان لوگوں کے خلاف تحریک نہیں چلائی، اور ان لوگوں کے خلاف مجھے آواز اٹھانی چاہیے تھی جن پر مجھے شبہ تھا. اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ دنگا اگر میں نے نہیں کیا، لیکن بریلی میں 2010 میں دنگا ہوا. وہ دنگا کس نے کرایا؟ جب تک اصلی چور نہیں پکڑا جائے گا دوبارہ چوری ہونے کا اندیشہ بنا رہے گا. اس لیے آج میں یہ عہد کرتا ہوں کہ جب تک 2010 کے اصل دنگائی سامنے نہیں آئیں گے تب تک انشاءاللہ ہماری یہ لڑائی جاری رہے گی. ہمیں ہندوستان کی عدلیہ پر یقین ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی عدلیہ جو ہے یہ آخری قلعہ ہے، لوکتنتر کا آخری قلعہ ہے جسے فرقہ پرست طاقتیں دباؤ میں لینا چاہتی ہیں. لیکن سپریم کورٹ نے اپنے پچھلے کچھ فیصلوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ سپریم کورٹ کسی دباؤ میں کام نہیں کر رہا ہے، بلکہ جو نیائے کہتا ہے، جو سمویدھان کہتا ہے اس کے مطابق کام کرتا ہے. تو ہمارے اس یقین کو اور مضبوطی ملی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان بہت خراب حالات سے، بہت خراب دور سے گزر رہا ہے. بے ایمانوں کے ہاتھ میں طاقتیں آئی ہوئی ہیں. اب آخری امید اگر ہماری بچی ہے تو وہ نیائے پالیکا ہے، کیونکہ کاریہ پالیکا ہم دیکھتے ہیں، سرکار ہم دیکھتے ہیں پوری طرح لوکتنتر ختم ہو چکا ہے، کاریہ پالیکا پر قبضہ ہو چکا ہے، نہیں رکھا گیا. اور مجھے یقین ہے کہ نیائے پالیکا کو بچا کے رکھا جائے گا. اگر نیائے پالیکا کو ہم بچانے میں کامیاب رہتے ہیں تو ہندوستان کے لوکتنتر کو بچانے میں کامیاب ہوں گے. دنگے سے اس بات کا کوئی تعلق نہیں. دنگا دنیا جانتی ہے کن لوگوں نے دنگا کرایا. ایک بات سمجھ لیجیے آپ کہ اگر 2010 نہ ہوا ہوتا تو 2012 کا چناؤ جیتنا ناممکن تھا. جنہوں نے چناوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے 2010 کا دنگا کرایا ان کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں آئی.
मैं फिर कहता हूं कि बिरादरीवाद हुआ है और दो बड़े नेता, बरेली के दो बड़े नेता, इन लोगों की मिली जुली साजिश का नतीजा 2010 का दंगा था और इन्हीं दोनों की मिली जुली साजिश का नतीजा ये 2024 में जो उसे उखाड़ा गया है दोबारा, ये उन्हीं लोगों की मिली जुली साजिश का नतीजा है और इस साजिश को इंशाअल्लाह नाकाम किया जाएगा। रहा सवाल इस बात का कि मेरा खानदान, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खानदान बुजुर्गों का खानदान है और बुजुर्गान दीन पर हम यकीन रखते हैं। हमारे खानदान ने हमेशा मोहब्बत का पैगाम दिया है, अमन का पैगाम दिया है और मेरे खानदान के हासिदीन वो मेरे खानदान को बदनाम करने के लिए, खानदान से जो लोग कुछ हसद रखते हैं या रंजिश रखते हैं, उन लोगों को खरीदा जाता है, उन लोगों को एक्टिव किया जाता है, उन लोगों को फाइनेंस किया जाता है और मेरे खानदान को बदनाम करवाने की और दूसरी खानकाहों से मेरे खानदान की बरेली शरीफ का इख्तिलाफ पैदा करने की कोशिश की जाती है। जैसे आपने देखा होगा अजमेर शरीफ और बरेली शरीफ, अजमेर और बरेली कभी अलग हो ही नहीं सकते। ऐसे ही उन्हीं लोगों ने कोशिश करके बरेली सकलैनी और रजवी का फसाद और फितना शुरू किया। उन्हीं लोगों ने रजवी, कादरी और मदारी का फितना शुरू किया। ये तमाम लोग जो है, ये मुनज़्ज़म साजिश मेरे खानदान की जो मकबूलियत है, आला हज़रत की जो मकबूलियत है, उससे जो लोग हसद रखते हैं, उन तमाम की साजिश और उन्हीं की साजिशों का एक अदना मोहरा मैं भी बना हूं और उसी वजह से मुझे इन तमाम तकलीफों, लेकिन हम किसी खास वजह से काम नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ जो काम कर रहे हैं अपने मुल्क, अपनी मिल्लत और अपनी कौम के लिए काम कर रहे हैं और अल्लाह ने जितनी हिम्मत, जितनी ताकत हमें अता की है, इंशाअल्लाह काम करते रहेंगे। इन तकलीफों, इन परेशानियों से घबराने वाले हम नहीं हैं। चुनाव देखिए, अब ये थोड़ा सा तफसीली हो जाता है, लेकिन अब बात निकली है तो मैं बता दूं आपको कि लोकल साजिश है, ये अपनी जगह है, लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जैसी तंजीमें ये चाहती हैं कि मैं इत्तेहाद मिल्लत का काम करूं। इत्तेहाद मिल्लत का काम होने से उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है कि हिंदू मुसलमान हो रही है, मुसलमानों का ये काम करेंगे, हिंदुओं का हम काम करेंगे। लेकिन इन्होंने जब ये देखा कि मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दलितों की भी बात कर रहा हूं, ओबीसीज की भी बात कर रहा हूं, एसटी, एसटी और तमाम माइनॉरिटीज की बात कर रहा हूं, और मैंने सामाजिक न्याय मंच बनाया है। सामाजिक न्याय मंच, मैंने आपको पहले भी बताया था, सामाजिक न्याय मंच एक एम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें तमाम छोटी छोटी पार्टियां, जैसे बिहार से पप्पू यादव हैं उसमें, महाराष्ट्र से प्रकाश अम्बेडकर हैं, गुजरात से छोटू भाई वसावा हैं, ये बड़े बड़े लोग हैं और बड़े बड़े असरदार, अपनी अपनी जमातों में बड़े असरदार लोग हैं। हमारे उम्मीदवार यहाँ जैसे, तो मैं ये कह रहा था कि जब उन्हें ये महसूस हुआ कि मैं कहीं नुकसान करने जा रहा हूं और ये जिन लोगों को बहकाते हैं, तो मैंने दबे कुचले तमाम लोगों को मुत्तहिद करने की कोशिश की। तब ये लोग मुझसे खौफजदा होकर और मेरे खिलाफ ये साजिश की गई और मेरी उन कोशिशों को ब्रेक लगाने के लिए ये तमाम साजिशें रची गई। लेकिन इसमें हमारे तकरीबन 20 उम्मीदवार हैं और हमने इस बात का खास ख्याल रखा है कि भारतीय जनता पार्टी इंशाअल्लाह किसी कीमत पर नहीं आने देना है। इंडी गठबंधन का जहां तक ताल्लुक है, तो इंडी गठबंधन ने जहां कायदे के उम्मीदवार उतारे हैं वहां उनका समर्थन है। जहां उन्होंने बेईमानी की है, जैसे अखिलेश यादव मुसलसल बेईमानी कर रहे हैं और अखिलेश यादव के, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि अखिलेश यादव के पीछे आरएसएस का रिमोट कंट्रोल काम कर रहा है। जैसे जीती हुई मुरादाबाद की सीट इन्होंने हारने वाले उम्मीदवार को टिकट दे दिया, उस जीते हुए को काट के। मुस्लिम सीट थी, उस मुस्लिम सीट को इन्होंने गैर मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा करके उसको खराब किया। ऐसे कई जगह, जैसे रामपुर में भी इन्होंने डमी उम्मीदवार उतारा है, ऐसे ही इन्होंने बिजनौर में किया है, ऐसी कई जगह इनका काम है। तो मैंने ये महसूस किया है कि जहां जहां ये डमी उम्मीदवार उतार रहे हैं या आरएसएस के बताए रास्ते पर चल रहे हैं, वहां हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे और वहां अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं और इंशाअल्लाह वो हमारे लड़ाई में आने वाले उम्मीदवार हैं, जीतने वाले उम्मीदवार हैं। कम से कम
20 उम्मीदवार हमारे सामाजिक न्याय मंच के सामाजिक न्याय मोर्चा के लड़ रहे हैं, जिसमें आईपीएस छोड़कर आए हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से लड़ रहे हैं हमारे भाई, जिन्होंने आईपीएस डीआईजी थे पूना में, उन्होंने उससे इस्तीफा दिया और सीएए के टाइम पर उसकी मुखालफत में, और वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो हमारे उम्मीदवार हैं। इस किस्म के हमने जिम्मेदार और बावकार उम्मीदवार, जहां हमने ये महसूस किया है कि इनके उम्मीदवार जिम्मेदार नहीं है और इन्होंने आरएसएस की लाइन पर काम किया है, वहां हमने अपने उम्मीदवार उतारे। रामपुर, देखिए ऐसा है, रामपुर में मैं एक बात कहता हूं, रामपुर वालों के लिए खास तौर से ये बात कहता हूं कि रामपुर में अगर आजम खान नहीं तो साइकिल किसी कीमत पर नहीं चलनी चाहिए। आजम खान के साथ जितना बड़ा विश्वासघात समाजवादी पार्टी ने किया है, एसटी हसन के साथ जितना बड़ा विश्वासघात समाजवादी पार्टी ने किया है, ये आरएसएस की लाइन पर काम कर रहा है बाकायदा, और इसकी हिम्मत नहीं हुई कि आजम खान पे भरोसा करके ये यहां से चुनाव लड़ लेते रामपुर से, और रामपुर से अगर अखिलेश यादव चुनाव लड़ते तो आजम खान की जिम्मेदारी बन जाती कि इन्हें जिताकर भेजते, लेकिन इन्हें प्रशासन से लड़े तो आजम खान लड़े, मुसलमान लड़े, और मजा करूं तो मैं करूं, ये तरीका अब चलने वाला नहीं है। आजम खान, मैंने रामपुर के अवाम के लिए खास तौर से, क्योंकि रामपुर के अवाम के पास कोई ऑप्शन था ही नहीं, या तो भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी, मैंने ऑप्शन के तौर पर महमूद पराचा साहब को वहां उतारा है। रामपुर के अवाम को यह दिक्कत ना आए कि अगर हम समाजवाद, मैं कहता हूं कि इंडी गठबंधन हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक जाएगा दूसरा आएगा, जो दूसरा आएगा मुसलमानों को कंगन नहीं पहनाएगा, मुसलमानों को अपना काम खुद करने की ताकत और सलाहियत अपने अंदर पैदा करनी चाहिए, और मुसलमान को उन तमाम दबे कुछ लोगों को अपने साथ लेना चाहिए जिनके साथ दंगे फसाद कराने का काम किया जाए। भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है, लेकिन मुझे अंदेशा इस बात का है कि ये जाएंगे तो घर जाके नहीं सो जाएंगे, ये जाएंगे तो दोबारा दंगे कराएंगे, ये जाएंगे तो दोबारा बम ब्लास्ट कराएंगे, और फिर मुसलमानों पर इल्जाम लगाएंगे कि मुसलमानों ने बम फाड़ा है और मुसलमानों ने दंगा किया है। फिर कांग्रेस हमारे बच्चों को झूठे इनकाउंटर करेगी, झूठे इल्जामात में जेल में भेजेगी। जो आज हमसे पहलू बचा कर चल रहे हैं, वो कल हमारी इन तकलीफों के लिए कैसे खड़े होंगे, कौन उनसे बात करेगा। इसलिए हमने ये तय किया है कि हम अपना एक ग्रुप इंशाअल्लाह पार्लियामेंट में जिता कर भेजेंगे, और अपना काम खुद करने की शुरुआत हम आज से कर रहे हैं। और रामपुर वालों से खास तौर से मैं ये अपील करता हूं कि मैंने एमपी जिताने के लिए नहीं भेजा है, बल्कि तुम्हारी मजबूरी, कल तुम कहते कि मजबूर थे, हम जाते कहा, समाजवादी के अलावा हमारे पास रास्ता नहीं था। समाजवादी सब भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा बड़ा जहर है मुसलमानों के लिए, तो वो समाजवादी पार्टी है। अगर आजम खानों को, मुझ जैसे लोगों को जेल में पहुंचवाना है, अगर अतीक और अशरफ मरवाने हैं, अगर मुख्तार अंसारी की तरह तुम्हें जहर दिलवाना है अपने लोगों को, तो तुम समाजवादी पार्टी के साथ चले जाना, वरना हम तुम्हारे लिए लड़ रहे थे, महमूद पराचा तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, औकाफ की लड़ाई लड़ी जा रही, तमाम काम तुम्हारा किया जा रहा है। अगर तुम्हारा जमीर अभी मरा नहीं है तो महमूद पराचा के अलावा कोई तुम्हें नजर नहीं आना चाहिए, तब मैं समझूंगा कि रामपुर के अवाम वाकई जिम्मेदार और बावकार हैं। बस।